करेक्ट। तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर आपको याद होगा हमने क्या देखा था। लास्ट टू लास्ट लेक्चर वी हैड सीन दैट कि octet should get complete, है ना। If someone wants to become stable, what should happen? His octet should become complete, right? And if that octet is not complete, what will happen? He will not be stable. Correct. So that's why your rare gases, inert gases, all these things came into picture, which showed that, yeah, my gas or my any element, it can be stable only if it attains a stable configuration. Correct. That means it has 8 electrons in its valence shell. Then only it can become what? Then only it can become stable, right? Otherwise, it will not be stable. But what happened as days progressed with moving ahead time, we came to the conclusion that what would happen is that even if the octet is not complete, correct, तो क्या देखा हमने आगे कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी है, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भी है, तो भी क्या होगा, फिर भी आपका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, वो आपका स्टेबल रहेगा. करेक्ट. Still it would be stable. How? In formation of the compounds, that was called as your, correct, what was it called when electrons are less? Yes, what was it called when electrons are less than 8? What it's called? Still they are stable, such compounds. Yes, anyone of you would like to answer? Yes, Mihik, you remember? Mihik? Just a minute, I'll just plug in. Yes, Mihik, meanwhile, you can answer. Oh, yeah, very good. So yes, Ria has answered it very nicely. He's saying that in a limited octet rule, correct, or incomplete octet. That's what it was called as, incomplete octet, right? So you know all these things, but you have to revise it. Correct. You need to revise it again and again. Then only it will stay in your mind. Correct. If we are not revising the concept, then what is happening? It will go away. Correct. It will not stay in our mind. So essentially is what you do. You do revision after every class, and before coming to next class also, what you have to do is that you have to revise it. Correct. Uska revision karo, which helps you a lot. Correct. Because you could recall. Understood, Mihik? Okay. So it's not that you don't know. The gap is between doing the revision of what you know. Correct. So you have to just fill in the blanks. And that blank is what? Do the revision. Okay. Yeah. So incomplete octet. And then there is something called as a expanded octet. There's something called as what? There is something called as expanded octet. And expanded octet means what? Expanded octet means there are more than 8 electrons, correct, in the valence shell, and still it is what? Still it is stable, possessing 8 electrons. That is what? That is expanded octet is. And then one more we had seen, right? And what was that one more? The thing which we had seen was odd electron. मतलब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, and still it is what? Still it is stable, possessing 7 electrons within in the outermost shell. Right. These all points we discussed, and then we moved on to the point of seeing the VBD theory. Correct. Moved on to the point of seeing the valence bond theory. Correct. Yeah. No. Before valence bond, we saw Vesper. Correct. Vespa गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. वेस्पर हमने देखा. वेस्पर मीन्स व्हाट? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. समझ में आई मेरी बात?
BSEPR, BSEPR, BSEPR क्या था उसका फुल फॉर्म? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, BSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। तो ये हमने देखा था ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, राइट? सो and then after seeing that what happened, there we got to know the geometry. तो पहले के जो हमने theorem थे उसमें geometry हमको पता चल रहा था कि बच्चों, were we knowing the geometry in the previous things? Correct, we were not knowing the geometry, है ना? We were not knowing the geometry in the, correct, in the previous slides, but here, correct, what is happening is that we are knowing the geometry, है ना? Here in Vesper we could know the geometry, you all could make out the geometry. How? Because it depends on the repulsion, you know, it depends on the repulsion of the valence shells. Whichever valence shells are there, valence electrons are there, what they will do, they will repel each other, correct? What they will do is that they will repel each other, and because of the repulsion both of them would want to go far away from each other, ना, एक दूसरे से बहुत बहुत दूर जाने का कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, है ना? द फार दे आर, जैसे किसी दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं वो, दूर दूर जाके बैठ जाते हैं ताकि क्या हो जाए, है ना, शांत हो जाए, माहौल शांत हो जाए, करेक्ट? समझ में आई मेरी बात? जैसे मिहिक और पीयूष में कभी झगड़ा हो गया, तो क्या करेंगे, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना है अभी, है ना, चले जाओ मेरे नजरों के सामने से, मुंह मत दिखाओ अपना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है तो वो दूर जाके, और दूर जब जाते हैं तब क्या मिलता है हमको, हमको कुछ शेप मिलता है, वी गेट शेप्स, एंड दैट शेप्स वी हैड स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। कौन से थे वो शेप्स, कौन बताएगा? Which all were the shapes in the last lecture we had seen? Shapes like, yes, anyone remembers? Which were the shapes? You could put on the chat. You could put on the chat. Yes, tell me. No one? Yeah, very good. It was linear, tetrahedral, trigonal, planar, you know, and so many more. Correct? The bent shape, the T shape, right? And the, even you saw the seesaw shape. Correct? So all these we had seen last time. Correct? And all of you remember that, right? All of you, yes, very good. Trigonal, octahedral, all these shapes, all of you saw last time. Correct? And what happens is that the shape increases if the, correct, if you have 3 orbitals or 4 orbitals, right, or the hybridization which we had seen, depending on that, shape will also change, correct? So what happens if there are 3 units, just like if I have a BCl2, shape would be linear, correct? If I have 3 bonds, correct, BCl3 or BF3, it would be trigonal planar, correct? If I have CCl4, it would be tetrahedral, correct? Yeah, very good. It would be tetrahedral, you know. And if it is what, if it is 5 bonds, it would be what? It would be trigonal bipyramidal. And if it's 6 bond, it would be octahedral. That we had seen, correct? And later on, after this, correct, what all of you saw was that इसके बाद आपने क्या देखा? After this, you saw that there is something called as, you know, a lone pair which changes the shape, correct? You know, so you have something called as bond pair जिसमें 2 bond होते हैं. Lone pair मतलब 2 electrons separate रहेंगे, correct? 2 electrons would remain separate apart from that, correct? आपके 2 electrons, है ना,
सेपरेट रह जाएंगे उसमें, ठीक है, राइट। तो इफ वन लोन पेयर इज देयर, योर एंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय हाउ मच? एक लोन पेयर होता है, एंगल किस किस कितने से रिड्यूस होता है? एंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय हाउ मच? एनीवन नोस? ये मेरे पास एक लोन पेयर है तो एंगल कितने से कम होगा? 2.5 डिग्री। हाँ, if I have two lone pairs, how much will the angle get reduced? It would get reduced by 5 degrees, correct? Getting my point? So one lone pair 2.5 degrees, two lone pairs it would be 5 degrees. This is how the angle would get decreased, and that's how you saw that in bent shape the angle is around 104 degree 5 minutes, something like that, correct? And in NH3 where there is one lone pair, right, what happens is that in that the angle is around 107 something, 7.28 or 106.7. Why? Because 2.5 से वो एंगल कम हो गया है, 2.5 से एंगल क्या हो गया है? कम हो गया है, करेक्ट, राइट। तो ये सब चीजें देखने के बाद हम लोग जहाँ पहुंचे थे वीबीटी के ऊपर, करेक्ट। वीबीटी, एनीवन रिमेंबर्स वीबीटी? क्या देखा हमने वीबीटी में? और फुल फॉर्म एटलीस्ट यू ऑल मी नोइंग, फुल फॉर्म तो पता होगा सबको, क्या है इसका फुल फॉर्म? So what is the full form of VBT? Who can tell? Who can tell the full form of VBT? Yes, Asmit Chaman, can you tell full form of VBT? Asmit? Asmit Chaman, full form of VBT? नहीं पता किसी को? रुद्राक्ष? रुद्राक्ष? Valence bond theory. Yeah, very good, correct. Valence bond theory. Right. So this is the point which we had started to discuss, valence bond theory, है ना? और वैलेंस मतलब किसी को पता है वैलेंस का मतलब क्या होता है? वैलेंस क्या होता है? कोई जानता है वैलेंस का मतलब? जो सबसे क्या है? सबसे आउटर मोस्ट है, करेक्ट। वैलेंस का मतलब जो कि सबसे आउटर मोस्ट है उसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड। और ये जो आउटर मोस्ट वाले सारे हैं ये सब क्या बनाते हैं? आउटर मोस्ट वाले सारे मिलके बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैप करेंगे, सब करेंगे। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, वो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज उसी के बारे में चर्चा होने वाली है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। और उसके बाद हम लोग जहाँ पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो एक फ्रेश पेज निकालो आप और लिखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है शायद, है ना, बट फिर से इसकी आप रचना कर सकते हो आपकी नोटबुक में, ठीक है। लिख लो फटाफट से, वैलेंस बॉन्ड थियरी, करेक्ट, वैलेंस बॉन्ड थियरी। कहाँ पर थे हम लोग पिछली बार? क्या नाम, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? केमिकल बॉन्डिंग। क्या है आपको? केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग पिछली बार? Just a minute, I'll just find out that where the topic is gone. हाँ, ये तो हमने थोड़ा देखा था, करेक्ट ना? वी आर डन ना, थोड़ा लिटिल बिट। यहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग, तो मैंने क्या बताया, इट विल टॉक अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, एक दूसरे के ऊपर आके ओवरलैप करेंगे, करेक्ट। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स शुड कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट वी हैड सीन, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, करेक्ट। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, करेक्ट। तो जो दो ऑर्बिटल आ रहा है वो कैसे आने चाहिए पास में? ज्यादा नहीं आने चाहिए, करेक्ट, ज्यादा पास में नहीं आने चाहिए। कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा लेस देन 50%, करेक्ट। ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल इधर ना, पूरा ओवरलैप होना चाहिए कि नहीं? कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा, 50% से भी कम। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, देखो आपको दिख रहा है कि हर एक ऑर्बिटल का 50% से कम ही भाग दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया जा रहा है,
है ना। और अल्टीमेटली क्या देखते हो कि जितना है ना, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, अभी कुछ ओवरलैपिंग सिर्फ 10% होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। कुछ ओवरलैपिंग क्या होगा, कुछ ओवरलैपिंग 30% होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होगा। कुछ ओवरलैपिंग कितना होगा, 50% होगा, 40% होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा का मतलब बच्चों क्या होता है आपको पता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब उसको तोड़ने के लिए भी उतना ही ज्यादा एनर्जी लग रहा है। आ रही मेरी बात समझ में, करेक्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर, करेक्ट, है ना। दैट मीन्स व्हाट, उसको तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है। तो लिख लो इसको, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा क्या होता है, अपना बॉन्ड एनर्जी भी उतना ही ज्यादा रहता है। हेलो, ओके, ये सब लिख लिया आप लोगों ने। और एक पॉइंट लिख सकते हो कि एक्सटेंड ओवर डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, which is directly proportional to what, बॉन्ड एनर्जी, करेक्ट। उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ बॉन्ड, करेक्ट। तो ओवरलैपिंग ज्यादा मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम, नहीं ओवरलैपिंग ज्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज आल्सो मोर, और उसको बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। और जितना स्ट्रांग बॉन्ड उतना ही उसका क्या होगा, उतना ही कम उसका लेंथ होगा, मतलब कम लेंथ हो जाएगा उसका। जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड उतना ही कम लेंथ उसका आएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लिख लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप ऑफ, है ना, ओवरलैपिंग होते हैं, दैट विल सी। ये हो गया लिख के सबका। तो ये ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट बहुत बहुत आसान है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो लिख सकते हैं आपकी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब ओवरलैपिंग तो हो रहा है अभी, लेकिन ओवरलैपिंग का अलग अलग तरीके, है ना। मनमानी ओवरलैपिंग कर सकते क्या हम लोग, मनमानी ओवरलैपिंग तो नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ओवरलैपिंग का कुछ टेक्निक होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो बच्चों सबसे पहला काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्साइल ओवरलैपिंग, ठीक है।
क्या कहते हैं, एक्साइल ओवरलैपिंग। एक्साइल ओवरलैपिंग मतलब एक्सिस के ऊपर, समझ में आ रही है मेरी बात? एक्साइल ओवरलैपिंग मतलब क्या, एक्सिस के ऊपर। और इसको ऐसे भी कहते हैं, एक्सिस मतलब ऐसा ओवरलैपिंग होने वाला, मतलब ये डायरेक्शन में आ रहा है, करेक्ट, ऐसा आएंगे दोनों, हेड ऑन, करेक्ट, या फिर एक्साइल। समझ में आ रही है मेरी बात? मान लो ये एक्सिस है यहाँ पर और ऐसे आ रहे हो, correct? या फिर ऐसे आ रहे हैं, मतलब उसको हेड ऑन भी कह सकते हैं, correct? क्या कहूँगा इसको मैं, कहूँगा ऐसा भी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, करेक्ट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसा आके मिल रहे, ठीक है। तो एक्साइल ओवरलैपिंग, और दूसरा क्या है आपका, हेड ऑन ओवरलैपिंग, करेक्ट, उसको कहते हैं। और दूसरा तरीका है बच्चों क्या, एक यदि एक्सिस है और एक यदि ऐसा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, if it's such then it would be called as what, it is called as what, parallel, क्या कहेंगे इसको, पैरेलल ओवर लैपिंग, करेक्ट, इसको बोलेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग, राइट। या फिर पैरेलल मतलब ऐसे रहेंगे वो लोग, है ना, ऐसा ओवरलैपिंग करेंगे। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, साइड वाइज, पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना। तो जो एक्साइल ओवरलैपिंग होता है बच्चों, इसमें फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड। अब बोलोगे सिग्मा बॉन्ड क्या है, हमको तो पता ही नहीं है, तो डरो मत, अभी आगे जाके पता चलेगा आपको। और पैरेलल ओवरलैपिंग में क्या होता है, आपको फॉर्म होता है व्हाट, यू गेट फॉर्म्ड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है ये भी हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे उसके बारे में भी आगे, करेक्ट, है ना। तो आपको इतनी बात समझ में आई, दो तरीके के ओवरलैपिंग होते हैं, कैसे, एक तो एक्सेल और एक हेड ऑन, राइट। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट जनरली इन दिस केस, व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, आप ये दो पॉइंट लिख लो, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। इन दोनों को लिख लो आप, तब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, उसको टाइम लगेगा। ओके, हो गया। तो देखो, है ना, जनरली जो ऑर्बिटल्स होते हैं, करेक्ट ना, generally these orbitals which are there, correct, they are in the form of waves, correct, wave energy form में होता है, करेक्ट।
और ऊपर वाला जो होता है वो प्लस फॉर्म में, नीचे वाला माइनस साइन में, ऊपर वाला प्लस फॉर्म में, नीचे वाला माइनस फॉर्म में, ऊपर वाला प्लस फॉर्म में, नीचे वाला माइनस फॉर्म में, प्लस, अब ये क्या है, माइनस। करेक्ट ना। अब मैंने थोड़ा इधर उधर निकाला, वो आप परफेक्टली निकाल लेना उसको, है ना। इट्स सेम एवरीवेयर, ऐसा नहीं कि बढ़ते जा रहे हैं, वो सेम ही है, थोड़ा वो लिखते समय ऊपर नीचे हो जाता है। करेक्ट। So these orbitals, they are in the form of this correct shape, you know. And if you see, करेक्ट, तो जो ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल होते हैं, मान लो इस प्लस, करेक्ट, दिस इज माइनस, प्लस, दिस इज माइनस, करेक्ट। तो क्या होगा, ये ऐसा ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि प्लस और प्लस दोनों साथ में है, माइनस और माइनस भी दोनों क्या है, दोनों साथ में है। So these two can overlap because both of them are in the same phase. Suppose if this orbital is like this and ये दूसरा वाला ऑर्बिटल कुछ ऐसा रहा, करेक्ट, तो ये दो ओवरलैप कर सकेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो सेम फेज में नहीं है ना। वो ओवरलैपिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों सेम फेज में नहीं है। तो ओवरलैपिंग करने का कंडीशन क्या है, दोनों सेम फेज में होनी चाहिए। अभी ऑर्बिटल नहीं पता आपको, वो भी आगे देखने वाले, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ओवरलैपिंग करने वाले सेम फेज में, ये प्लस प्लस वाला कर सकता है सेम, करेक्ट ना। अब जैसे ये वाला है माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, दे टू कैन, बोथ ऑफ देम कैन ओवरलैप, करेक्ट, बिकॉज दे आर इन द सेम फेज। मतलब एक ही डायरेक्शन है, इसका भी एक ही डायरेक्शन है, करेक्ट। तो ये आके ऐसा कर सकते हैं हेड ऑन, ये नीचे वाले दिख रहा है आपको, ऐसे आके ओवरलैप कर सकते हैं, और ये वो ऐसे वाले वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा और ऐसा कर सकते हैं, ओवरलैप नहीं कर सकते, है ना। सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो यू कैन राइट डाउन, मेक अ नोट हियर दैट overlapping orbitals should be in the same phase. Okay, overlapping orbitals should be in the same phase, right? Now don't write as of now. Overlapping orbitals should be in the same phase. अब पहला वाला यदि हम लोग देखने जाएं, जिस कॉल्ड एज व्हाट, पहला वाला क्या था अपना टॉपिक, एक्साइल ओवरलैपिंग। एक्साइल ओवरलैपिंग कौन शो करता है, एक्साइल ओवरलैपिंग शोन बाय ऑफ कोर्स बोथ एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल दोनों शो करते हैं, है ना। एक्साइल ओवरलैपिंग मींस दे कम ऑन द एक्सिस एंड दे करेक्ट ओवरलैप. So if I have this s orbital, हाइड्रोजन का एक है, H you know, correct, it is 1s1, you know, and s orbital is something like this. This is your s orbital, which is spherical in shape. s orbital क्या है वो, s orbital is spherical in shape. तो ये एक s orbital और ये एक s orbital थोड़ा छोटा बन गया है, करेक्ट। तो क्या ये दोनों मिल सकते हैं, दोनों साथ में मिलके एक बॉन्ड बना सकते हैं, करेक्ट ना। सो one orbital is here, another orbital is here, both of them can come together, you know, and overlap with each other, correct। ऐसा कुछ ओवरलैप हो जाएंगे,
or in one other way also it could be represented, and that is how it is something like this. Correct? One electron here, another electron here. That kind of overlapping, it could be represented in this way also. Correct? And such a kind of overlapping is called as head-on overlapping. Correct? That's what is axial overlapping. Correct? जिसमें आप क्या देख रहे हो? Right? Both of them are coming together to form a bond, and this is called as what? This is a sigma bond. Sigma bond. This is sigma bond. Correct? Sigma bond which is formed by axial overlapping. Correct? तो H का ये 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये क्या बॉन्ड फॉर्म करता है अपना, ये H2 मॉलिक्यूल हो गया आपका, राइट? ये क्या बन गया आपका H2 मॉलिक्यूल। पहला एग्जांपल है अपना H2 वाला, जिसमें दोनों कौन से, दोनों s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, करेक्ट? और s ऑर्बिटल का शेप कैसा रहता है? s ऑर्बिटल शेप इज, इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल। करेक्ट? मतलब इसका कुछ डायरेक्शन नहीं। अभी स्फीयर का कुछ डायरेक्शन होता है क्या? देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ स्फीयर। करेक्ट? स्फीयर डज नॉट पोजेस एनी डायरेक्शन, तो इसका भी कुछ डायरेक्शन नहीं है एस ऑर्बिटल, है ना? करेक्ट? देयर इज नो डायरेक्शन। बट पी ऑर्बिटल आप देखोगे ना, सेकंड आप देखोगे पी ऑर्बिटल का, उसका डायरेक्शन है क्या? करेक्ट? सेकंड और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। करेक्ट? तो जो सेकंड है अपना, सेकंड वाले का, वेट आई विल गिव यू टाइम टू राइट। सेकंड वाला मान लो आपका PCl3 है, ठीक है? ओके, if it is PCl3 or any other example we take BF3 simple, PCl3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा वाला लेते हैं, है ना? इससे आपको भी अच्छा लगेगा। क्या आपने मान लो हमने ले लिया BF3, करेक्ट? तो बोरॉन इज व्हाट? बोरॉन इज 1s2 2s2 and 2p1, correct? And fluorine is what? Fluorine is 1s2 2s2 2p5, correct? तो बोरॉन ये है 1s2 2s2 2p1, फ्लोरीन is 2s2 2p5, करेक्ट? अब करना क्या है हमको? नाउ बोरॉन हियर यू आर एबल टू सी, बोरॉन क्या है, ये इसको छोड़ दो आप, है ना? 2s2 को लिखो यहाँ पर, 2s2 में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है 2s2 में, ठीक है? और 2p में कितने हैं? 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? ये क्या है आपका? ये है, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, करेक्ट? लेकिन अभी कितने, 3 फ्लोरीन आने वाले हैं ना, तो क्या हो जाता है, 3 फ्लोरीन आने की वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है। ओके, एंड दिस इज नाउ, दिस शुड नाउ बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्साइटेड स्टेट, करेक्ट? व्हेन इज वेरी एक्साइटेड, करेक्ट? एक्साइटेड हो जाता है बहुत व्यक्ति जब, ओह रियली, करेक्ट? ना लाइक दैट। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली, करेक्ट ना? Any doubt anyone has till now or not able to hear properly, please let me know. Yes, anyone? No one? श्री कृष्ण ने आज, अरे बाकी हो के मैं अकेले बैठ सो तो नहीं गया सब लोग? हो ना आप लोग लेक्चर में? नहीं? ओके, वेरी गुड, वेरी एबल टू हियर एवरीवन। स्वरूप, स्वरूप, यू आर एबल टू हियर मी? ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था कि एक्साइटेड स्टेट जब हो जाएगा तो क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, करेक्ट? और ये अभी खाली है, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट, इसको रहने दो। फ्लोरीन का क्या हुआ था? फ्लोरीन का था ये 2s2 और ये, है ना? 1 2 3 4 5, करेक्ट? तो ऐसे कितने हैं फ्लोरीन के? 3 ऑर्बिटल है ना, F3 है,
करेक्ट ना, F कितने 3 है, तो फ्लोरीन का एक क्या, ये जो ऑर्बिटल खाली है वो किसके साथ पेयर करेगा, वो इसके साथ पेयर करेगा, करेक्ट। और फ्लोरीन का जो दूसरा है, करेक्ट, दूसरा फ्लोरीन वो इसके साथ पेयर करेगा, और तीसरा फ्लोरीन जो है ये इसके साथ पेयर करेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो पहला बॉन्डिंग देखो, एस का ये एफ का कौन सा ऑर्बिटल है, पी के 3 ऑर्बिटल ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पहला टाइप का बॉन्डिंग किसके बीच में हो रहा है ना, एस एंड पी जेड। दूसरा टाइप का बॉन्डिंग किसके बाद, ये क्या है आपका, पी एक्स, पी एक्स एंड, अभी पी एक्स पी वाई के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ, जो खाली है उसको पकड़ लेता हूँ मैं, क्या, पी एक्स, सॉरी पी वाई, पी जेड और पी एक्स। किसी को भी कहीं भी रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, हम लोग अपनी मर्जी से नाम ले सकते हैं। तो पी एक्स में होगा, और ये पी वाई है। तो थर्ड वाले का क्या होगा, इसका थर्ड वाले का इसका होगा पी एक्स, पी जेड और ये पी वाई। तो थर्ड बॉन्ड किसके बीच में, पी वाई के बीच में। आई बात समझ में बच्चों, है ना। तो एस और पी में जब होगा तो कैसा होगा, देखो बॉन्डिंग, एस और पी जेड में बॉन्डिंग हो तो कैसे होगा, एस का एक ऑर्बिटल प्लस पी का ये पी ऑर्बिटल, डम्बल शेप होता है पी का ऑर्बिटल, करेक्ट, डम्बल शेप, है ना, बॉडी वाला, करेक्ट, डम्बल शेप किसका होता है, पी का। तो ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, कैसा, है ना। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो सिग्मा bond, correct. And then second would be what, your px, करेक्ट ना, सेम फेज px py एक फेज में है तो उनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, राइट, प्लस माइनस प्लस, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, मिलके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और सेम रहेगा पी वाई के लिए, करेक्ट। तो इस तरह से हमने देख लिया कि सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके में बन सकता है, एस एस में बन सकता है, एस पी में बन सकता है, और पीपी में बन सकता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में ना। तो इस प्रकार से तीन बॉन्ड बन सकते हैं, एस एस में, एस पी में और पीपी में, करेक्ट। तीनों में कैसे हो रहा है, हेड ऑन हो रहा है, ऐसे आ रहे हैं वो, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट, लिख लो बच्चों, इसको लिख लो फटाफट, कुछ डाउट रहेगा तो चैट में पोस्ट करो। ठीक है, लिख लो फटाफट इसको, आप लिख लो तब तक, दोपहर का हमारा एक दवाई रहता है तब तो वो ले लेता हूँ मैं।
Just one question is there that, sir, will the py bond be similar to px px? Yeah, it will be same only. You know why? Because it's just the axis. Px means p orbital is lying on the x axis. Py means p orbital is lying on the y axis. बस क्या फर्क है? ऑर्बिटल थोड़ा अलग है, करेक्ट, लेकिन उसका बस एक्सिस का फर्क है उसमें. There is no difference. In no other difference than that. That's the difference. Difference only between the axis, nothing else. Okay, got it. Okay, so I hope this is clear. Anyone has any doubt in this? You can ask me. Right? Then we'll move on to next. Okay, we'll see the next now. तो ये क्या था आपका? ये था आपका साइडवाइज ओवरलैप, करेक्ट. अगला हमको देखना है क्या? नेक्स्ट वी वांट टू सी इज, सॉरी, ऊपर वाला था अपना एग्जाइल. अगला क्या देखना है हमको? नेक्स्ट वी वांट टू सी इज दैट साइडवाइज ओवरलैप. साइडवाइज ओवरलैपिंग. अब ये साइडवाइज ओवरलैपिंग है ना, करेक्ट. It does not take place in s orbital. तो s orbital में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनता है ना. Does not take place. मिहिक बेटा समझ में आ रहा है क्या तुमको? Does not take place in हाँ सर. s orbital. ठीक है, वेरी गुड. तो s में नहीं तो किस में होगा? वो p में होगा. करेक्ट. कैसे होता है ये ऑर्बिटल? ऐसा, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, करेक्ट. तो क्या करते हैं, दोनों साथ में आके मिलके ना अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ऐसा. करेक्ट. तो एक तो ऐसा बोलते हैं इसको, ऐसा बॉन्ड बनता है दोनों में साइड वाइज, मतलब ऐसे है और एक दूसरे ऐसे लपेट जाते हैं. और यू कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वे. करेक्ट ना, ऐसा भी लिख सकते, कुछ अलग ही बन गया स्ट्रक्चर. यहाँ से थोड़ा ओवरलैप करेगा और नीचे से थोड़ा ओवरलैप करेगा, राइट. तो ऐसा कुछ दिखेगा ये. ठीक है. ओके, ये है आपका साइड वाइज ओवरलैप. दिस इज योर साइड वाइज ओवरलैप. कि वो साइड वाइज क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं. ठीक है. और क्लासिक एग्जांपल है इसका आपका इथीन मॉलिक्यूल, जिसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव योर CH2 डबल बॉन्ड. करेक्ट. इसमें क्या होता है? इसमें ये साइडवाइज ओवरलैप होगा, राइट. और यू टेक योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, योर O2 मॉलिक्यूल. O2 मॉलिक्यूल में भी क्या होता है? O2 मॉलिक्यूल में भी ये ऐसा ही होता है, करेक्ट. एक ना, ठीक है. तो O2 एग्जांपल देखते हैं. O2 में, O2 में क्या होता है? ऑक्सीजन इज व्हाट? ऑक्सीजन इज 1s2 2s2, राइट. एंड व्हाट इज दिस? 2p व्हाट? 4. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, करेक्ट. एंड दिस इज O2 मींस व्हाट? 2 ऑक्सीजन तो लेने पड़ेंगे आपको, करेक्ट ना. ओके, ठीक है. तो पहले वाले का लिख लेते हैं हम लोग. ये हो गया आपका 2s2. 1s2 नहीं कंसिडर करते ऐसा जब लिखते हैं तब, करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी इट इज इनर ऑर्बिटल, तो उसको नहीं किया था. 1 2 3 4. ये क्या है आपका? 2p 4 है ना.
और ये दूसरा ऑक्सीजन अपना, करेक्ट, 1s2 2s2 2p4, इसका भी 2s2 और इसका भी क्या है अभी, करेक्ट 2p4 है ना। अब ऑर्बिटल बॉन्डिंग पेयरिंग किसमें होगा, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, करेक्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर देयर इज अ डबल बॉन्ड, बच्चों हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखने वाली बात है क्या, कि डबल बॉन्ड जब रहता है तो क्या होता है उसमें से, ये डबल बॉन्ड है आपका, है ना, उसमें जो फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। मतलब पहला बॉन्ड हमेशा जो बनेगा वो कौन सा रहेगा, सिग्मा, मतलब जो कि ओवरलैपिंग से बनेगा बच्चों, ठीक है। और दूसरा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा, दूसरा बॉन्ड जो बनेगा बच्चों, दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा, दूसरा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड इज व्हाट, सेकंड बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड, करेक्ट, व्हिच फॉर्म्स अ ओवरलैप। मतलब ये अभी क्या है, px py और pz है ना, यहाँ पर भी क्या है, px py और pz है, करेक्ट। तो क्या होगा इसमें, py py में भी क्या होगा, py py में भी कैसा बॉन्ड होगा, है ना, राइट, py py में कैसा बॉन्ड होगा, उसमें हेड ऑन ओवरलैप होगा, करेक्ट, राइट। तो अभी इस s ऑर्बिटल तो भरा हुआ है, इसको पहले से भूल जाते हैं अभी, है ना। नाउ व्हाट विल हैपन, तो मान लीजिए पहला मेरा ऑक्सीजन है, करेक्ट, तो ये क्या है मेरा, ठीक है, राइट। ये टेढ़ा आ रहा है थोड़ा, इसको सीधा लगाना चाहिए इसको, क्या हो गया इसको, सिंक्रोनाइज क्यों हो रहा है ये, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, ये एक ऑर्बिटल है अपने पास, ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये एक ऑर्बिटल रहता है अपने पास, और ये दूसरा हो, इसमें भी ये एक, करेक्ट। तो क्या होगा अभी एक ऑर्बिटल देखो पहले से भरा हुआ है ना, कौन सा वाला, आपका एक्स ऑर्बिटल, करेक्ट, एक्स ऑर्बिटल इज ऑलरेडी फिल्ड दोनों का, तो इसको कुछ भरने की जरूरत अभी नहीं है। मान लो ये एक्स ऑर्बिटल है, एक्स ऑर्बिटल भरा हुआ है, करेक्ट, है ना, नो नीड टू डू एनीथिंग, करेक्ट। नाउ दिस इज योर, ये आपका पी जेड है, करेक्ट, और ये आपका पी वाई है, ये भी आपका पी वाई है। तो इन दोनों में क्या होगा ना, ये दोनों बॉन्ड साथ में आ गए। अभी साथ में आने के बाद कमी दिखा दो आपको, किस लिखेंगे इसको, करेक्ट। तो पहला बॉन्ड बन गया किसके बीच में, पी वाई के बीच में, कैसा बॉन्ड बन गया, ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बन गया क्या आपका सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट, राइट। और ये वाला और ये वाला, ये क्या है आपका पी जेड में क्या बनेगा, दूसरा बॉन्ड इज हाउ, सेकंड बॉन्ड इज ऑलवेज अ पाई बॉन्ड, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बराबर,
करेक्ट। तो इस तरह से कुछ फॉर्म होगा ये बॉन्ड, है ना। मतलब ये अभी 3D स्ट्रक्चर है तो ऐसा नहीं दिखा सकते हम लोग, कैसे दिखाएंगे वैसे ही दिखाएंगे, करेक्ट। तो ऐसा एक बन रहा है और एक ऐसा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? किसी को इसमें कुछ डाउट है, पूछ सकता है मुझे। ओके, एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, एनीवन हैज, और ये लगे तो मिटा दो अभी इसको। Okay, it will be something like this. Any doubt you can ask. तो इसमें क्या फॉर्म हुआ आपका? सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। और पीजेड, पीजेड में क्या फॉर्म हुआ आपका? पाई बॉन्ड। समझ में आया कि मेरी बात बच्चों? किसी को कुछ डाउट है इसमें? Anyone has any doubt you can ask quickly. किसी को डाउट है कुछ उसमें? नहीं है तो लिख लो फटाफट। नहीं है तो लिखो फटाफट, राइट इट। You can also post it in chat. Huh? If at all you have some doubt, you can also post it on chat. हो गया सबका?
Should we move on to next topic? Anyone? ओके फाइन. तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोग क्या N2 का स्ट्रक्चर, अरे पेन किधर गायब हो गया मेरा? पेन किधर गया मेरा? बच्चों आपने तो नहीं चुराया पेन? आप लोग तो नहीं लिए ना? ठीक है. अब N2 का स्ट्रक्चर कोई बना सकता है? N2 का, जैसे मैंने O2 का स्ट्रक्चर बनाया. वैसे आपको किसका बनाना है? N2 का बनाना है. ठीक है, किसका बनाना है? N2 का. करेक्ट. अब N2 में आपको पता है क्या होता है? N2 में ट्रिपल बॉन्ड है ना? इसका मतलब फर्स्ट बॉन्ड है सिग्मा. N2 में क्या है? 1 sigma bond and 2 pi bonds. Correct. So I know that nitrogen is what? I know nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. Correct. तो ये S2 को तो निकाल दिया और 3 है. ठीक है. और एक N का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3. करेक्ट. तो क्या होगा? सिंपल दिख रहा है आपको? ये तीनों के तीनों p ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना? तो इसमें N इज लाइक दिस. एक तो ये ऐसा ऑर्बिटल होगा ही ओवरलैपिंग. करेक्ट. है ना? क्या करेंगे अभी? इसका एक बॉन्ड तो ऐसा बन रहा है, एक तो ऐसा ओवरलैप हो रहा है. करेक्ट. राइट. दूसरा कैसा ओवरलैप होगा? दूसरा देखो. करेक्ट. और तीसरा ओवरलैप होगा कुछ ऐसा. करेक्ट. तो ब्लू वाला क्या है आपका? ब्लू वाला ये सिग्मा बॉन्ड है. करेक्ट. ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला पीजेड पीजेड पाई बॉन्ड. करेक्ट. और रेड वाला क्या है? रेड वाला भी क्या है? p/p/, पाई बॉन्ड. ओके. इसमें कुछ डाउट है अभी? इसमें किसी कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट, तो इसको लिख लो फटाफट. ठीक है. और आपको क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो तब तक. Question is find the number of sigma and pi bonds in
H2O, correct, NH3, C2H2, C2H4, CH3COH, correct, NiSO3, and then 7 is H2SO4. ओके, तो इस सातों का आपको क्या निकालना है, हर एक इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है वो निकालना है, ठीक है, निकालो फटाफट। I hope you got my question correct ना? मेरा क्वेश्चन समझ में आएगा सबको ना? देवी नायर, क्वेश्चन समझ में आया क्या? Irish Watts, you understood? Any doubt? Aboli Bandisti, understood? Any doubt? करो इसको फटाफट, do it fast. एटलीस्ट पहले तीन का बताओ, पहले तीन का बताओ, CH2 NH3 और C2H2 का। बाकी का थोड़ा मुश्किल जा रहा हो तो मुझे बताओ।
आया कुछ वाटर का आया? वाटर का तो बताओ कितने एच बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है कितना? वाटर का स्ट्रक्चर तो पता है ना, आपने देखा वाटर का स्ट्रक्चर कहाँ पे देखा वाटर का स्ट्रक्चर हमने? किस में देखा वाटर का स्ट्रक्चर? लास्ट टाइम देखा हमने VSEPR में, करेक्ट? निकालो उससे। हो गया क्या? नहीं कुछ आया? एक तो आंसर बताओ बाबा, कैसे होगा तुम्हारा? ठीक है, रिया पराठे, आंसर बताओ मुझे, क्विकली टेल आंसर, एटलीस्ट वन आंसर यू टेल। आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो बताओ, SMS करो मुझे, चैट करो। कि टू बॉन्ड्स बट विच काइंड ऑफ बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स? ना तो वाटर हैज विच काइंड ऑफ बॉन्ड्स? पाई बॉन्ड वाटर हैज, oh sorry sigma bond water has ना, so you know water structure is like this। कुछ पाई बॉन्ड है क्या इसमें? नहीं, दिस वन सिग्मा एंड दिस वन सिग्मा, करेक्ट? तो कितने हो गए टोटल? टू सिग्मा बॉन्ड वाटर। हाँ वेरी गुड, करेक्ट ना? और NH3 का तो सबको पता ही है, एक लोन पेयर NH3 के पास, और ये तीन सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या? थ्री सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। उसके बजाय आपका जो थर्ड था C2H2 का कैसा स्ट्रक्चर? C2H2 समथिंग लाइक दिस, करेक्ट ना? तो सिग्मा बॉन्ड कौन से इसमें? सिग्मा बॉन्ड को ब्लू कर देता हूँ मैं, एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड को ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है? ये एक और ये एक, है ना? तो हाउ मेनी? थ्री सिग्मा एंड टू पाई, ओके, थ्री सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, ठीक है? ऐसा करो अभी आगे के, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना अपना, ठीक है?
क्या है अपडेट्स? C2H4 का है किसी का? C2H4 5 sigma bond and by 0.1 pi bond. Okay. See, fourth structure is something like this. Yeah, very good. Correct. Sanika has got correct answer. है ना? तो ये आपका C2H4 का स्ट्रक्चर करेक्ट. तो क्या है दिख रहा है आपको? सिग्मा बॉन्ड को लाल कर देता हूँ मैं, पाई बॉन्ड को नीला कर देता हूँ. सुझाव क्या आ गया इसका? 5 सिग्मा एंड 1 पाई. ठीक है, तो अभी आगे का फटाफट. थोड़ा स्ट्रक्चर अभी करने में आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. करेक्ट, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा बाद में. अभी आप लिखने का काम करो आपस, मतलब जितना समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर भी मैंने जो बनाया उसको समझने की कोशिश करो, आप उसमें समझ जाएगा आपको. ठीक है. Okay, CH3COH has 7 sigma bonds. No this क्या? No pi bond CH3COH. कैसा स्ट्रक्चर CH3COH का स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर बनाना आप धीरे धीरे सीख जाओगे. डबल बॉन्ड O OH करेक्ट. तो सिग्मा बॉन्ड कौन से? 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा करेक्ट. और ये जो डबल बॉन्ड है वो एक पाई है ना. तो क्या बोलेंगे इसमें? 6 सिग्मा एंड 1 पाई. ठीक है, 6 सिग्मा एंड 1 पाई. इसका करो बेस 2 4 का.
देखते H2SO4 किसको आता है। H2SO4 का है कि किसी को? गिरीश वत्स, क्या हालचाल है? रुद्राक्ष, तनिषा तलाटी, स्वरूप, रिद्धि वाजपेयी। रिद्धि वाजपेयी डज नॉट स्पीक एनीथिंग, है ना? I'll tell your brother. Okay. Should I tell? You don't fear. आप क्या बोल रहे हो? मेरा भाई मुझसे डरता है, आप क्या बोलोगे उसको? ऐसा है क्या? नहीं, कुछ तो बोलो फिर। ठीक है, करो इसको, लिखो फटाफट। एक ही लिखा है, एक ही दिया है मैंने अभी, और सबको वो भी आपका धीरे धीरे चल रहा है। मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको समझे कंसेप्ट, है कि नहीं? SO3 भी बाकी है ना? हाँ, yeah, correct. SO3, very good. SO3 has 3 sigma bonds and 3 pi bonds. Very good. Yeah. SO3 has 3 sigma and 3 pi bonds. Correct. Very good. आगे का करूँ?
H2SO4 कहाँ है किसी का? ओके, तो बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, है कि नहीं? बस हो गया अभी आपका। देखो 6 है आपका SO3। ठीक है, ये टफ थे आपके लिए, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे इसको सीख जाओगे। SO3 में क्या है ना, 3 सिग्मा, ब्लू कलर के सिग्मा और ब्लैक कलर के पाए। ठीक है, 3 सिग्मा एंड 3 पाए। ओके, और अभी H2SO4 का कैसा स्ट्रक्चर है? H2SO4 का ऐसा है स्ट्रक्चर, देखना, 2H और S और O4, करेक्ट। तो अभी इसमें आप बताओ, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, देखो स्ट्रक्चर देख के तो बताओ अभी कम से कम कितने सिग्मा है और कितने पाए हैं। सबसे मुझे आंसर, सबका आंसर, जिसका आंसर नहीं आएगा उसको मैं पूछूंगा क्यों नहीं आया आंसर। ठीक है, तो इसका एक निकालना है आपको, उसके बाद इसमें भी आप बता दो अभी, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों एग्जाम में, आपको पता नहीं। करेक्ट, और 10th वाला आपका ओके। सबसे चाहिए मुझे आंसर, इन तीनों के आंसर सबसे चाहिए। 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ओके, वेरी गुड, या करेक्ट, करेक्ट गुड। बाकी करो, अभी सब कुछ दिया है मैंने आपको, बस खाना खाना है, बस सब प्लेट प्लेट भर के दिया है आपको अभी, सिर्फ आपको उसमें क्या करना है, खाना है बस अभी। हम्म, वो भी नहीं हो रहा है तो कहीं से आपको कूदना पड़ेगा, है कि नहीं?
Sani Kaisimi. Okay, 6 sigma and 2 pi. That is correct. Others also I want answer from you. No? Aboli, Asmit Chavan, Devi Nair, Irish, Mihik, Piyush, रिद्धि, रुद्राक्ष, स्वरूप, तनिषा. सबसे आंसर चाहिए. Do it fast. हो गया क्या? मिहिक आंसर बताओ. Ninth number. What's that is here C double one C. Here C triple one CN, C triple one CN, C triple one CN, and C triple one CN. Okay. So Ria is telling that okay, 9 sigma 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 9 sigma and 9 pi. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah, very good, correct. Ria has got all of the answers correct. 1 2 3 6 sigma and 3 pi. Yes, yes, very good, very good. Correct. She has got all answers correct. बाकी लोगों को कुछ आ गया क्या? मिहिक, अस्मित चौहान, सबसे आंसर चाहिए.
सब लोग सो गए लगते, टाइम पास कर रहे हैं सब लोग, कोई आंसर नहीं दे रहे। मिहिक हो गया तुम लेक्चर में? मिहिक, मिहिक, पीयूष, ठीक है। ये दोनों पाई है और बाकी सब सिग्मा, तो कितने हैं? 6 सिग्मा एंड 2 पाई, करेक्ट ना? इसमें क्या है? काले पाए है, ठीक है, काले वाले पाए है, 1 2 3 4 ना, 9 सिग्मा एंड 5, सॉरी 9 पाई 5 सिग्मा ना, फाइव सिग्मा, करेक्ट। इसमें सिर्फ 3 ही पाए हैं, 12 sigma and 3 pi. Okay, I hope this is clear. If anyone has any doubt, you can let me know. Otherwise, we'll continue ahead with the next topic. Okay, so now all of your homework is from your textbook. You have to write difference between sigma bond and you will get in your textbook. Okay, sigma bond और pi bond के बीच में क्या difference है ये आपको लिखना है ना? The same things which we discussed till now. Okay, right, that you need to write it down. Okay, ठीक है। अभी अगला टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक इज योर नेक्स्ट कंसेप्ट, ये अपना बीबीटी हो गया। अगला कंसेप्ट क्या है अपना? हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। हाइब्रिड आपने सुना होगा, हाइब्रिड प्राणी होते हैं, हाइब्रिड सब्जी होता है, हाइब्रिड बहुत कुछ चीज़ें हाइब्रिड है आजकल। हाइब्रिड मतलब क्या? दो चीज़ों का मिलावट करना। हाइब्रिड मतलब क्या? दो चीज़ों का मिलावट करके बनाना, करेक्ट। अब मान लो मुझे CH4 बनाना है, तो प्रॉब्लम क्या है पिछली वाली थियरी में कि CH4 क्या कहता है कि, है ना, CH4 सारे के सारे बॉन्ड्स क्या है इसमें, है ना, सेम है, राइट। समझ में आ रही मेरे बात? सारे के सारे बॉन्ड क्या है? सेम ही है ना, करेक्ट ना। लेकिन होता क्या है अभी, इफ आई राइट CH4, हाउ विल आई राइट? कार्बन इज 1s2 2s2 2p2, करेक्ट। तो ये 2s2 होता है ऐसा, और ये 2p2, 1 और 2, है ना। ये ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा। इन एक्साइटेड स्टेट यू विल फाइंड दैट दिस इज 1 एंड दीज आर ऑल व्हाट? 4, करेक्ट है कि नहीं? और आपके 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, हाइड्रोजन, है ना, चारों हाइड्रोजन ऐसे आएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, और इन सब के साथ पेयरिंग करेंगे, करेक्ट। तो ये क्या है आपका? S है, ये P है और P है। ये हाइड्रोजन का S है, S है, S है, S है। तो फर्स्ट बॉन्ड किस में बन रहा है? S और S में। सेकेंड बॉन्ड बन रहा है आपका S एंड PX। थर्ड बॉन्ड में बन रहा है S और PY। फोर्थ बॉन्ड बन रहा है किसमें? S और PZ में, करेक्ट ना। ऐसे बॉन्ड बनेंगे, ये दो ओवरलैप होंगे, करेक्ट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि CH4, है ना, all bonds are equivalent and have equal length, करेक्ट। सारे के सारे बॉन्ड क्या है? सारे के सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट, और सबका लेंथ क्या है? सबका लेंथ क्या है? सबका लेंथ एकदम सेम है, करेक्ट। लेकिन ये वाला कंसेप्ट हम लोग VBT का कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? S और S का लेंथ कुछ अलग होगा और S और PX का कुछ लेंथ अलग होगा, है कि नहीं? लेकिन थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व करें तो सबका लेंथ क्या है? सबका लेंथ सेम है। मिहिक समझ में आ रहा है क्या? हो कि सो गए गए? मिहिक हाँ श्योर। समझ में आ रहा है ना बेटा तुमको? कुछ तो रिप्लाई दो। ठीक है, तो SS बॉन्ड का लेंथ अलग होगा SPX से। तो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है अभी, करेक्ट ना? इसीलिए क्योंकि चारों बॉन्ड का लेंथ सेम है और सभी क्या है? इक्विवेलेंट बॉन्ड्स है। तो VBT का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये इसमें गड़बड़ आ रहा है, कुछ और अलग कंसेप्ट हमको चाहिए अभी यहाँ पर ये समझने के लिए, है कि नहीं? इस कंसेप्ट हम इसको समझ सकते हैं कि इस कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे, तो कुछ अलग हमको समझना पड़ेगा, करेक्ट, कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे कि हम ये
कंसेप्ट समझे? और वो अलग क्या है चीज बच्चों, आपका ये हाइब्रिडाइजेशन है। आगे मेरी बात हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेक्ट है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? अभी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, कार्बन के ये जो 4 ऑर्बिटल है ना, ये s px py और pz है ना, ये सब क्या होते हैं, सब साथ में मिल जाते हैं, करेक्ट। सब क्या है, साथ में मिल जाते हैं, जैसे है ना, करेक्ट। ओके, जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी आपको अभी एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। मिहिक हो क्या तुम मीटिंग में? कुछ बोलो, अनम्यूट करो मिहिक। मिहिक, हाँ सर। हाँ, तुमको कौन सा लड्डू अच्छा लगता है बताओ? मोतीचूर का लड्डू अच्छा लगता है, बूंदी का लड्डू अच्छा लगता है, रवे का लड्डू, कौन सा लड्डू अच्छा लगता है? सर कौन सा भी चलता है। फिर भी तुम्हारा कुछ होगा ना अच्छा वाला, सबसे सबसे बेस्ट वाला। बूंदी शायद से। ठीक है, बूंदी का लड्डू है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है बूंदी का लड्डू, करेक्ट। मैं क्या करता हूँ, बूंदी का लड्डू येलो कलर का रहता है ना, एक बूंदी का लड्डू ले लिया, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात ना? अब क्या करता हूँ मैं, अब और एक लड्डू ले लेता हूँ, करेक्ट। पीयूष हो गया तुम मीटिंग में? पीयूष, पीयूष अनम्यूट करो अपने आप को। पीयूष, पीयूष बेटा कुठे आहेस रे तू? पीयूष, पीयूष, पीयूष असं का करता तुम्ही? ठीक है, रुद्राक्ष हो गया तुम मीटिंग में? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष अनम्यूट करो अपने। यस सर। कौन सा तुमको लड्डू अच्छा लगता है बताओ? सर बेसन का। ठीक है, बेसन का लड्डू, ओके। तो क्या कर लिया मैंने सर, 3 बेसन के लड्डू ले लिए, ठीक है, ओके। अब बच्चों कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, 3 बेसन के लड्डू लिए हैं। अब मैंने क्या कर दिया, इन चारों को मिक्स कर दिया, एकदम सबको चकनाचूर कर दिया और सबको मिक्स कर दिया यहाँ पर, है ना, करेक्ट। तो इसका पाउडर बन गया अभी, राइट, राइट, इसका पाउडर बन गया, देख सब ऐसा ऐसा हो गया, देखो, यस और नो? और उसमें बीच बीच में ये भी है, येलो कलर का भी, ठीक है। तो अभी सबको मिक्सचर कर दिया, है ना, और इन दोनों का जो मिक्सचर बना है, करेक्ट, इस मिक्सचर का मैंने क्या किया है, इस मिक्सचर के, है ना, और क्या बना दिया मैंने, इस मिक्सचर के 4 अलग अलग लड्डू बना दिए मैंने इसके, एक लड्डू, एक लड्डू, एक लड्डू और एक लड्डू, करेक्ट। तो रुद्राक्ष बताओ अभी ये 4 जो नए लड्डू बनाए, है ना, इसमें क्या तुमको फर्क लग रहा है? क्या हो रहा है अभी नए 4 लड्डू में? रुद्राक्ष बताओ। रुद्राक्ष, 4 लड्डू किससे बनाए? यस सर। इससे, ये 4 नए लड्डू में क्या तुमको नई खासियत क्या नजर आ रही है इसमें, 4 लड्डू में? सर सर कुछ भी इक्वल नहीं है सर, उसमें कोई भी लड्डू मिक्स हो गया अभी। लड्डू मिक्स हो गए, करेक्ट। मतलब कुछ मात्रा बेसन का भी है, कुछ मात्रा इसमें मोतीचूर का भी है, ये सॉरी क्या है आपका, बूंदी का भी है, बराबर ना? तो दोनों मात्रा इसमें मिक्स हो गई, बट ऑल 4 आर सेम नाउ, यस सर। चारों चारों सेम है अभी, करेक्ट ना?
हाँ सर। है ना, चारों अभी सेम है, करेक्ट, राइट, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर बट एट द सेम टाइम दे आर व्हाट, दे आर सेम। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग बच्चों, क्या हो रहा है तुमको पता नहीं चल रहा कि ये जो चार ऑर्बिटल थे कार्बन के, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, चारों के चारों मिल जाते हैं लड्डू की तरह, और मिलने के बाद फिर से नए प्रकट हो जाते हैं। वो क्या बन जाता है इसका नया, नए चारों के चारों मिल जाते हैं, करेक्ट, चारों के चारों मिल जाते हैं और मिलके क्या फॉर्म करते हैं, नए चार और ऑर्बिटल, जैसे चार नए लड्डू बने हैं, सेम सेम, करेक्ट, उसी तरह चार नए ऑर्बिटल बना देते हैं, करेक्ट। और हर एक ऑर्बिटल किससे बना है, करेक्ट, एक एस है और तीन पी है, करेक्ट, तो इसलिए सबका नाम क्या है, इसका नाम sp3 ऑर्बिटल, इसका भी नाम sp3 ऑर्बिटल, करेक्ट, इसका भी नाम sp3 और इसका भी नाम sp3। समझ में आई मेरी बात बच्चों, ठीक है। तो हर ऑर्बिटल का sp3 नाम क्यों, क्योंकि हर ऑर्बिटल sp3 के मिक्सचर से बना है, एंड ऑल द फोर ऑर्बिटल्स आर हैविंग सेम एनर्जी नाउ। सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है इसका, सिंक्रोनाइज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये तो समझ गए ना आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट। all four are having what, all four are having the same energy, चारों का सेम एनर्जी होगा, ओके। और आपका CH4 भी जो अभी बनेगा नया, कैसा बनेगा, H का तो क्या है, H का तो हर जगह क्या है, H का ऐसे ऑर्बिटल है, H का ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, और इसका, लेकिन कार्बन के कौन से चार, कार्बन का यहाँ पर sp3 बॉन्ड कर रहा है, यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है, और यहाँ पर भी sp3, और तो बॉन्डिंग किस में हो रहा है बच्चों, बॉन्डिंग अभी हो रहा है ना H में और sp3 में, करेक्ट, यहाँ पर इसके बाद H H H और H, राइट, बॉन्डिंग हो रहा है H के s ऑर्बिटल के साथ और sp3, इस तरह से क्या है, सभी के साथ न्याय हो रहा है ना। सभी बॉन्डिंग कैसे आ रही है, फिर अभी सभी बॉन्डिंग सेम ही आ रही है। समझ में आया कि आप लोग क्या हो रहे हैं यहाँ पर बच्चों, अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, एनी डाउट, क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन समझेगा आपको क्या हो रहा है इसमें, you know, all orbitals are getting formed of the same energy, okay? All bonds are getting formed of the same energy, right? So is there any difficulty or getting in understanding this? लिख लो इसको फटाफट। Okay, any doubt here?
जा ही नहीं रहे किसी